شہزادی وہ آ گئی ہیں۔ کون آ گئی؟ خورم سلطان۔ کیا آقا جانتے ہیں اس بارے میں؟ معلوم نہیں شہزادی، لیکن مہرما سلطان کو معلوم تھا، اسی لیے انہوں نے ان کا استقبال کیا۔ مہرما، اس نے کہا تھا کہ جلدی لوٹ آئیں گی، مطلب کہ وہ جانتی تھی۔ مناسب موسم ہے مصطفیٰ، تیاری مکمل ہوتے ہی شکار پر چلتے ہیں اور جہانگیر کو بھی اپنے ساتھ لے چلیں گے۔ اسے سن کر بہت خوشی ہوگی جیسے مجھے ہوئی۔ آقا، کہو لقمان آقا۔ خورم سلطان محل میں تشریف لے کر آئی ہیں۔ میں جانتی ہوں آپ اب تک مجھ سے خفا ہیں، کتھایا میں رہنے کا حکم دینے کے باوجود تم کس طرح سے میری اجازت کے بغیر یہاں واپس آ سکتی ہو؟ میں نے آنے کے لیے آپ کو بہت سے مکتوبات لکھے تھے، لیکن آپ نے جواب دینا بھی گوارا نہ کیا۔ میں نے سوچا کہ بس اب بہت ہو چکا خورم، ختم ہو گیا، میں نے کھو دیا آپ کو، اب کبھی دیکھ بھی نہ پاؤں گی۔ میں نے تمہیں بے سبب روانہ نہیں کیا تھا، میں ہر شب دعا مانگتی رہی، آپ کو دیکھنے کی خاطر، آپ کی محبت دوبارہ پانے کی خاطر اپنے رب سے دعا مانگتی رہی، میری جان آپ سے پہلے ختم ہو جائے،
تاکہ مجھے آپ کا وصال نہ دیکھنا پڑے. میں راضی تھی. آپ کی معافی ملنے تک، مجھے خود اپنے پاس بلانے کے انتظار تک میں آپ کے فیصلے پر راضی تھی. لیکن بعد میں وہ خبر آ گئی. مہربا نے بھیجی تھی مجھے کہ آپ کو اس جدائی پر افسوس ہے بہت. آپ میرے صدمے سے نڈھال ہیں اور اس وجہ سے آپ کسی بیماری کے بغیر ہی مرجھا گئے ہیں. خاص طور پر جہانگیر بہت خوفزدہ ہو گیا ہے. یہ سننے کے بعد کون مجھے وہاں روک سکتا تھا بھلا؟ پہاڑ بھی ہوتا تو راستہ نہ روک پاتا. یہ سن کر مجھے خوشی ہوئی. جہانگیر کو بھی اس سے اطمینان ہوگا. آخر وہ تم دونوں کی والدہ ہے. لیکن تم نے ایک موقع ضائع کر دیا ہے، یاد رکھنا. کیسا موقع ضائع کر دیا؟ حرم کو تم خود سنبھال سکتی تھی. اقتدار اور طاقت تمہارے ہاتھ میں آ سکتی تھی. تم جس کی خواہش کرتی رہی اور آج تک جس کا خواب دیکھتی رہی وہ سب کچھ حاصل کر سکتی تھی. سب تمہارا ہو سکتا تھا. والدہ کی طاقت اور اقتدار دراصل میری طاقت اور اقتدار ہے. سلیمان، اگر آپ چاہیں تو مجھے معاف نہ کریں. میری طرف ہرگز نہ دیکھیں. مجھ سے بے شک ایک لفظ نہ کہیں. مجھے اپنے سائے سے بھی محروم کرتے ہیں. لیکن خود سے دور نہ کریں. مجھے یہاں اپنے پاس اور جہانگیر کے پاس رہنے دیں. مجھے اس کی ضرورت ہے. یا پھر جان لے لے میری، تاکہ ختم ہو یہ اذیت. مسئلہ کاش تمہیں معاف کرنا اور محل میں قبول کرنا ہوتا. اگر تمہاری یہی خواہش ہے تو میرا یہ محل تمہارا بھی ہے. لیکن مجھے اصل افسوس، دکھ دینے والی چیز یہ نہیں ہے خرم، تمہاری کی گئی غلطی بھی نہیں. میں آئندہ کبھی بھی تم پر اعتماد نہیں کر سکوں گا. کبھی بھی نہیں. عفیفہ خاتون،
والدہ کی آمد کا سنا ہے میں نے. وہ آقا کے پاس موجود ہے, ہم بھی انہی کا انتظار کر رہے ہیں. والدہ. جہانگیر, میرے بہادر بیٹے. کیا ہوا؟ آقا نے کیا کہا آپ سے؟ قبول کر لیا کیا؟ اب آپ یہیں رہیں گی نا, یہاں سے نہیں جائیں گی؟ میں یہی ہوں, پریشان نہ ہو, اب ہم کبھی الگ نہیں ہوں گے. خوش آمدید حورم. خبر کر دیتی تو استقبال کا اہتمام کر لیتی. ایسے استقبال سے مجھے کبھی کوئی خوشی نہیں ہوتی شہزادی, اور استقبال کی تو ضرورت بھی نہیں کوئی. یہ میرا اپنا محل ہے. ملکہ, حمام تیار کر دیا ہے, اگر چاہیں تو تشریف لے چلیں, آپ کی تھکن اتر جائے گی. کیوں نہیں؟ کیا آقا نے جنگ کے متعلق کچھ فرمایا ہے شہزادے؟ مجھے بات کرنے کا موقع نہیں ملا تشیع علی, کیونکہ حرم سلطان آ گئی تھی. اب جب سب کچھ ٹھیک ہو رہا تھا تو اچانک وہ آ گئی. رستم پاشا کی اہمیت ختم ہو رہی تھی, مگر اب اس کی جرات بڑھ جائے گی. شہزادے محترم, عبداللہ کہاں ہے معلوم ہو گیا ہے؟ کہاں ہے عبداللہ؟ بغاز کیسن کے زندان میں ہے. وہ اب تک وہیں ہے. زندہ ہے یا مار دیا گیا یہ معلوم نہیں. میں نے سنا ہے کہ تمہیں زیادہ بات کرنا پسند نہیں ہے, جبکہ اس دن جب تم دربار آئے تھے تو بہت بول رہے تھے. آخرکار آپ تشریف لے ہی آئے. میرے علاوہ کسی سے بات نہیں کرو گے, تم نے یہ کہا تھا. تو میں آ گیا. اب بتاؤ, کس کی خدمت کر رہے ہو تم؟ کون ہے وہ؟ دراصل میں جن کی خدمت کر رہا ہوں وہ ایک خاتون ہے. میرا اندازہ بھی یہی تھا. فاطمہ سلطان. شاہ سلطان. وہ ایک ملکہ ہیں یہ درست ہے, لیکن میں ان کے ساتھ نہیں ہوں. کون ہے؟ خرم سلطان. رستم. شہزادے. تم کون ہوتے ہو رستم؟ تم ہوتے کون ہو میرے محافظ کو زندان میں بند کرنے والے؟ آپ کو غلط فہمی ہوئی ہوگی شہزادے. میں نے تو ایک غدار کو زندان میں بند کیا ہے. مجھے بتایا گیا کہ عبداللہ یہاں موجود ہے. انکار کرو گے کیا تم؟ نہیں, انکار کیوں کروں گا؟ تم میرے ساتھ مذاق کر رہے ہو کیا؟ یہ کیسی جرات ہے؟ ہرگز نہیں شہزادے, میری کیا مجال. میں تو صرف آپ کی نگرانی میں رہنے والے ایک غدار کی غداری کے متعلق بتا رہا ہوں. اس نے ایک ایسا راز افشا کیا ہے جو سننے کے قابل ہے, کیونکہ وہ آپ کی نہیں بلکہ کسی اور کی خدمت کر رہا ہے. اس کا کیا مطلب؟ فوراً وضاحت کرو.
अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह। पंजा फेंक दो आगा। अब्दुल्ला, तुम क्यों इतने गुमसुम हो? बहुत देर से एक लफ्ज नहीं कहा तुमने। आका और तुम्हारे दरमियान क्या कोई बदमस्ती हुई है? मेरी तमाम परेशानी का सबब तो वो रुस्तम है, क्योंकि अपनी हद से तजावुज कर चुका है। उसने क्या कर दिया अब? उसे कुछ करने की जरूरत नहीं, उसकी मौजूदगी काफी है। इत्मीनान रखो मुस्तफा, उसका वक्त आ पहुंचा है। मौका महल देखकर उस पर भी वार करेंगे हम, लेकिन सब्र से। आपके जहन में कुछ है क्या शहजादी? आपकी गैर मौजूदगी में महल की जिंदगी ठहर सी गई थी वालिदा। हर चीज साकित हो गई हो जैसे, खास तौर पर आका के लिए। यह आखिरी वार था महरमा। अब कोई भी मेरे साथ ये सब नहीं कर सकेगा। मैं इसका मौका ही नहीं दूंगी। तो फिर अब आपको खुद को भी रुकना होगा वालिदा, क्योंकि ये सब कुछ आपके दरबार को खुफिया तौर पर सुनने की वजह से हुआ है ना। यही होगा, मुझे मालूम था। मेरे रुखसत होते ही मेरी औलाद के दिल में मेरे खिलाफ जहर भरना शुरू कर दिया। गयासत, जहांगीर, तुम, क्या हो गया है तुम सबको? उन सबके साथ मिलकर क्या मुझे मारना चाहते हो तुम लोग? वालिदा, मैंने वो अपनी खुशी से नहीं किया था। देख लिया तुमने अपने बरादर मुस्तफा को, खुल्लम खुल्ला हमारे खिलाफ मैदान में आ चुका है। और ये याद रखना कि वो अगली बार हम सबको अपनी तलवार की नोक पे रखेगा। अल्लाह ना करे। आमीन। शहजादा एलकास मिर्जा इस्तांबुल में है। तुमने क्या देखा उसे? बस एक बार ही देखा उन्हें, लेकिन उनसे बात करने का मौका नहीं मिल सका। आप क्यों पूछ रही हैं? एलकास मिर्जा अहम शख्सियत है, वो हमारे काम आ सकता है। जल्द ही तुम अपने महल में एक ज़ियाफत का एहतमाम करोगी उसके लिए। उससे अच्छे ताल्लुकात रखने में फायदा है। रुस्तम से भी बात करूंगी मैं इस बारे में। जैसे आपकी मर्जी वालिदा। अगर आप चाहें तो फातिमा सुल्तान को भी बुलवा लूंगी, क्योंकि वो उन्हें कुछ ज्यादा ही पसंद है। मुझे बिल्कुल हैरत नहीं हुई। एलकास मिर्जा जैसे नौजवान शहजादे के लिए जरूर कोई नरम गोशा रखती होंगी फातिमा सुल्तान अपने दिल में। शहजादे मोहतरम, शहजादे। तुम लेटे रहो अब्दुल्ला। कैसे हो तुम? एक कयामत से गुजरे हो। तुम्हारी जगह कोई और होता तो बहुत पहले मर चुका होता। शुक्र है शहजादे। तुमसे इस हाल में सवाल तो नहीं पूछना चाहिए, लेकिन मुझे मालूम हुआ है कि रुस्तम पाशा को तुमने कोई राज बताया है। ऐसी कोई बात नहीं बताई जिससे आपको नुकसान पहुंचे। मुझे यकीन है अगर ऐसा होता तो वो ढंडोरा पीट देता। मैं जानना चाहता हूं कि कोई ऐसी बात तो नहीं बताई जो तुम्हारे लिए नुकसानदेह हो। नहीं, मेरा भी यही ख्याल है। लगता है कि रुस्तम हमारे दरमियान इख्तलाफ पैदा करना चाह रहा है, वरना वो ये क्यों कहता कि तुम मेरी खिदमत नहीं कर रहे बल्कि किसी और की खिदमत कर रहे हो? क्यों ठीक कहा ना मैंने? जैसा कि आपने कहा शहजादे, फसाद। खुद को जहमत ना दो, थकाओ मत।
حکیم سے اس کے زخموں کے لیے مرہم منگوا لیا تھا تم نے؟ शहजादे मंगवा लिया है। لیکن صورتحال संगीन है, इसे बेहतर होने में काफी वक्त लगेगा। इंशाल्लाह जल्द से एहतियाब हो जाएगा। आप अब कब आएंगे दोबारा शहजादे? जब भी मेरा दिल चाहेगा उस वक्त। कौन है आप लोग? मेरे घर में क्या कर रहे हैं? शहजादे सलीम यहाँ कितने अरसे से आ रहे हैं? जवाब दो खातून, क्या ताल्लुक है तुम्हारा उनसे? आप जो पूछ रही हैं मुझे नहीं मालूम। शहजादा सलीम को मैं बिल्कुल नहीं जानती। फौरन निकल जाए मेरे घर से। झूठ ना बोलो खातून, उन्हें यहाँ से जाते हुए मैं अपनी आंखों से देख चुकी हूँ। आपने जो भी देखा है गलत देखा है। मुझ पर इल्जाम लगा रही हैं। और आप हैं कौन? किस हैसियत से मुझसे ये सवालात पूछ रही हैं आप? दिमित्री आ गया। दिमित्री कौन है? तुम्हारा दूसरा आशिक है क्या? मेरे खावंद, खुदारा चले जाएं, यहाँ से फौरन जाएं। मेरा नहीं सोच रहे तो अपने बारे में ही सोचें आप लोग। अस्तालिया, कौन है वो लोग? जंगल में रास्ता भूल गए थे, मुझसे रास्ता पूछने के लिए आए थे। तुम क्यों आए हो? तुम्हारी याद आ रही थी। मेरी आमद पर खुशी नहीं हुई तुम्हें क्या? नई दुनिया से बोरियां भर भर कर चांदी और सोना बरामद किया जा रहा है, लेकिन हमें उससे कोई फायदा हासिल नहीं हो रहा। अगर यूं ही चलता रहा तो आगे चलकर हमें माली बहरान का सामना हो सकता है। हमें फिर से बहरे रूम की जानिब रुख करना पड़ेगा। मेरी भी जाने की ख्वाहिश है। वियाना फतह होते होते रह गया, लेकिन हम दोबारा फतह कर सकते हैं और मजीद पेशकदमी भी कर सकते हैं। ऐसा करने की ताकत है हमारे पास। हिस्पानिया और पुर्तगाल के कुफार की सरजमीन फतह करने के बाद इंशाअल्लाह ये नई दुनिया हमारी होगी। हाँ, लेकिन रुस्तम पाशा ने फर्डिनेंड के सफीर से दोबारा मुज़ाकरात शुरू कर दिए हैं। वैसे उस सुलह से हमें कोई फायदा नहीं होगा। इस वक्त हम दुनिया के हाकिम हैं, लेकिन उस मकाम की हिफाजत करना यहां तक पहुंचने से भी ज्यादा मुश्किल है। ठीक है, इस मकाम की हिफाजत करना बहुत मुश्किल है। हम अपनी पूरी कोशिश करेंगे। तुम्हारी इल्मियत और काबिलियत पर हैरान न होना मेरे बस में नहीं जहांगीर। किस तरह तुम इतना मुताला कर लेते हो और इतनी चीजें याद भी रख लेते हो। इस महल में वक्त गुजारने का मेरे पास और कोई तरीका नहीं है ब्रदर। इसके सिवा मैं और क्या करता, आतिशी दिल को बेदार रखने के सिवा, अलग दुनिया तख्लीक करने के सिवा। काश कोई और रास्ता भी होता। अगर अल्लाह ने चाहा और एक दिन मुझे तख्त पर बैठना नसीब हुआ तो ये जान लो कि तुम्हारा हुक्म मेरा हुक्म माना जाएगा इस महल में मेरे ब्रादर। खैरियत से हो जाए सब ब्रादर। आप जैसे माहिर अमूर सल्तनत को सिर्फ ऐसी ही बेशकीमत और नादिर कुतुब ज़ेब देती हैं। इंशाअल्लाह काज़विन का कुतुब खाना मुझे
آپ کے نام سے منسوب کرنا نصیب ہوگا انشاءاللہ۔ جب گفتگو جاری ہے تو پاشا، بادشاہ محترم سے جنگ کے متعلق کیا آپ کو بات کرنے کا موقع میسر آ سکا؟ نہیں، ابھی نہیں۔ میں معذرت چاہتا ہوں، لیکن ہمارے درمیان ایک سمجھوتا ہوا تھا۔ آپ نے جو چاہا میں نے بالکل ویسے ہی کیا۔ اب آپ کی باری ہے۔ عجلت مت کیجیے القاس مرزا، آقا کو اس فیصلے پر قائل کرنا اتنا آسان نہیں ہوگا جتنا آپ سمجھ رہے ہیں، خاص طور پر شہزادے مصطفیٰ کی موجودگی میں۔ جبکہ اس کے برعکس ہونا چاہیے تھا، یعنی شہزادے مصطفیٰ کی ریاست کی حدود فارس سے بہت قریب ہیں، انہیں خود کو ثابت کرنے کا یہ سنہری موقع ہے۔ آپ کی اس بات سے ثابت ہوتا ہے کہ آپ امور سلطنت میں کتنے ناتجربہ کار ہیں۔ شہزادے مصطفیٰ، جو کچھ میں نہیں چاہتا وہی کچھ کرتے ہیں، اسی کی خواہش کرتے ہیں۔ یہ اقتدار کی جنگ ہے القاس مرزا۔ دیار عجم میں عظیم فتح حاصل کرنا ہمارے لیے تقریباً ناممکن ہے میرے آقا۔ آپ جانتے ہیں وہ ہمارا مقابلہ کرنے کے بجائے پسپا ہو کر ہمارا انتظار کرتے ہیں، اور اس میں کافی اخراجات بھی ہوتے ہیں۔ تمہارا کیا مشورہ ہے؟ ویانا اور اس کے ساتھ روم کی جانب پیش قدمی کرنا، کفار کے قلب کو ان کے قبضے سے چھین لینا، ہمیشہ کے لیے حاصل کرنا۔ آپ کی بھی یہی خواہش ہے، میں جانتا ہوں۔ آپ کب سے یہ خواب دیکھ رہے ہیں، میں اس کا شاہد ہوں۔ ان خوابوں کی تعاقب میں ہم پھر سے روانہ ہو سکتے ہیں۔ آپ ہمارے دشمنوں کو پھر سے خوفزدہ کر سکتے ہیں میرے آقا۔ جنگ کے میدان میں ایک بار پھر جانا میری خواہش ہے مصطفیٰ، لیکن صورتحال کا جائزہ لینا ہوگا۔ سفر کا وقت، حالات اور واقعات دیکھ کر فیصلہ کرنا ہوگا۔ سلطنت عالیہ کی مستقبل کے لیے جو بہتر ہے آپ وہی فیصلہ کریں گے، اس کا مجھے پورا یقین ہے۔ میں تو ادھر قیامت کی منتظر تھی، مگر یہاں مصطفیٰ اور آقا کے درمیان برف پگھلنے لگی ہے۔ شہزادے کے ساتھ اگر اتنی قوتیں نہ ہوتی تو وہ کب کے برطرف ہو چکے ہوتے۔ وہ کون لوگ ہیں رستم؟ کیا اب تک معلوم نہیں ہو سکا؟ مصطفیٰ کی مدد کرنے والے کون ہیں؟ میں پوری طرح سے کوشش کر رہا ہوں، آپ مجھ پر یقین رکھیے ملکہ، لیکن دشمن کسی بھی طرح سے سامنے نہیں آ رہا ہے۔ ان لوگوں کا پتہ لگانا ضروری ہے، کیونکہ اس کے بغیر ہم جنگ نہیں جیت پائیں گے۔ آنے والے دن ہمیں کیا دکھائیں گے یہ میں نہیں جانتا ملکہ۔ یہ نیچر برسوں سے جنگ پر نہیں گئے، اس لیے وہ بہت بے چین ہیں۔ آقا کو بھی ان کے حالات کا اچھی طرح اندازہ ہے۔ القاس مرزا کو اپنے حضور قبول کرنے کا مطلب دیار عجم کے سفر کے متعلق شاید وہ سوچ رہے ہیں۔ القاس مرزا نے ہمیں ایک بڑی مصیبت سے بچایا ہے، آپ تو جانتی ہیں ملکہ۔ القاس کی ہمارے لیے حمایت نہایت اہم ہے۔ مہرمہ سے بھی کہہ چکی ہوں میں، اس سے اپنے محل میں مدعو کرو، اسے ڈھیر سارے تحائف دو۔ آپ اس حوالے سے اطمینان رکھیں، لیکن آقا کو ہمیں عجم کے سفر کے لیے باہر صورت قائل کرنا ہوگا۔ ایسا سفر ہمارے لیے بھی فائدہ مند ثابت ہوگا۔ اس طرح میں لشکر جرار کی سربراہی کرتا ہوا جاؤں گا، اور شہزادوں میں سے ایک سلطنت کا نائب بن کر ہماری طاقت میں مزید اضافہ کرے گا۔ یہ مشورہ مناسب نہیں ہے۔ اگر آقا نے مصطفیٰ کو سلطنت کا نائب بنا دیا تو پھر کیا ہوگا؟ ناممکن۔ ابھی جو کچھ بھی ہوا اس کے بعد آقا سلطنت کو ہرگز ان کے حوالے نہیں کریں گے۔ کیا تم یہ ڈھونڈ رہے ہو؟ تم سے اس حال میں یہ کہنا تو نہیں چاہتا عبداللہ، لیکن یہ مسئلہ شہزادی کی حفاظت کا ہے، اس لیے مجھ سے صبر نہیں ہو رہا ہے۔
रुस्तम पाशा ने जो कहा है क्या सच है? मैं अब तक यही सोच रहा हूं। मैं झूठ नहीं बोलूंगा। काफी अरसे से तुमने मुझे शक में मुब्तला कर रखा है। यकीनन कोई तो ऐसी बात है जिससे मैं मुतमईन नहीं हूं, जैसे अचानक तुम्हारा गायब हो जाना। मरहूम अमीरुल बहर पाशा पर भी एतमाद नहीं था क्या? बिल्कुल था एतबार, लेकिन क्या मालूम तुमने किसी से मुआहिदा कर लिया हो, खास तौर पर पाशा की वफात के बाद। शहजादे मुस्तफा के सब दुश्मन जाहिर हैं। भूल गए क्या तुमने ही मुझे उन लोगों से बचाया था। वो तो ठीक है, लेकिन रुस्तम पाशा ने किसी और का जिक्र किया है। सोचता हूं तो लगता है मुमकिन है, क्योंकि मेरे जहन में वो जहरालूद पोशाक आ जाती है। शायद खास तौर पर तुमने खबर नहीं दी हो हमें। तश्जी अली, ये जिन जासूसों का जिक्र किया है तुम उनमें से तो नहीं? तश्जी अली या वजीरों की, पाशाओं की भी जासूसी की जा सकती है, लेकिन एक सिपाही कभी भी दुश्मन के लिए जासूसी नहीं कर सकता, ये तुम जानते हो। हो सकता है तुम दुरुस्त हो, लेकिन जब शहजादी की हिफाजत की बात आ जाती है तो मैं हर जानिब सोचने पर मजबूर हो जाता हूं, और इस वजह से अब तुम हमारे साथ नहीं होगे। ये बात दाऊद से भी करो, जहां से भी आए हो वहां वापस लौट जाओ। तुम दोनों अब शहजादी के पास नहीं रहोगे। याह्या साहब, गजनफर कहाँ है? वो बाजार गए हैं शहजादे, आते ही होंगे कुछ देर में। खाना कहाँ तनावल करना पसंद फरमाएंगे आप? पहले हमाम तैयार करवाओ और नूरबानो से भी कहो कि वो मेरे पास आ जाए। आपका जो हुक्म शहजादे। अल्लाह अल्लाह तू मेरी मदद करना, आखिर कहाँ रह गए वो लोग? हमें इतनी देर नहीं लगानी चाहिए थी। शहजादे को अगर हमारी गैर मौजूदगी का एहसास हो गया तो हमें कोई नहीं बचा सकेगा। उनकी खता हमारी खता से अजीम है। खातून, ये मसला हमारी पहुंच से मुकम्मल तौर पर बाहर है। खुदा के लिए जो भी देखा है उसे भूल जाओ, उसके बारे में एक लफ्ज भी मत कहना। अगर कहोगी तो शहजादे अपना ताकुब किए जाने का समझ जाएंगे और हमें उसकी सख्त तरीन सजा देंगे। शहजादे एक शादीशुदा औरत से मुलाकातें कर रहे हैं और तौबा भी तोड़ चुके हैं। ये बात अगर फैल गई तो क्या होगा, सोचा है तुमने? शहजादी, वो आ गए। शहजादी, ये हैं अजम के शहजादे अलकास मिर्जा, मेरी ज़ौजा महरमा सुल्तान। शहजादी, खुश आमदीद। बहुत शुक्रिया शहजादी, आपकी और पाशा की इस दावत से मुझे बेपनाह खुशी हुई है। मेरा शुक्रिया कबूल फरमाइए। हमें भी आपको अपने महल में मेहमान बनाने पर बेहद खुशी हुई। दस्तरखान की तरफ चलते हैं। अगर आरजू हो तो महरमा सुल्तान को एक तोहफा पेश करना चाहता हूं। हाँ जरूर। ये आपके लायक तो नहीं, लेकिन अगर आप इसे कबूल फरमाएं तो मेरे लिए एहसास होगा। ये बहुत खूबसूरत तोहफा है, शुक्रिया। आप और पाशा मोहतरम तमाम उम्र खुशियों के साए में रहें। आमीन। आइए तशरीफ रखिए। आओ।
शहजादे, आपने मुझे याद किया? नूरबानो क्यों नहीं आई अभी तक? माजरत, शहजादा मुराद की तबीयत ठीक नहीं, इस वजह से। क्या हुआ मेरे बेटे को? बीमार है क्या? मुझे क्यों खबर नहीं दी तुमने जान फदा? कोई अहम बात नहीं है। क्या हुआ मेरे बेटे को? तबीयत नासाज है कुछ, अपने बाबा के करीब ना होने से बेचैन है। कौन बेचैन है? मैं समझा नहीं। मेरा बेटा या उसकी वालिदा? तुमने देख लिया कि मैं जल्दी वापस आ गया क्योंकि तुम्हारी परेशानी मेरे लिए अहम थी। जी बिल्कुल ठीक कहा। शिकार कैसा रहा? हमेशा की तरह, बहुत थका देने वाला। मैं जल्दी सो जाऊंगा। तुम दोनों को देखे बगैर मैं सोना नहीं चाहता था। अल्लाह आपको आराम दे। आमीन। नूरबानो, खातून कसम से मेरे हाथ पैर फूल गए थे। आखिर कहाँ थे आप इतनी देर से? शहजादे मोहतरम, शहजादे मोहतरम। पीरी रईस, आपके बारे में जो सुना क्या वो दुरुस्त है? अब्दुल्ला ने आपको जो भी बताया है मैं वो सब कबूल करता हूँ शहजादे। रुस्तम पाशा ने जिसका जिक्र किया था मैं ही हूँ। अपनी ये गर्दन न कटने का मुझे सिर्फ एक सबब बताइए पीरी पाशा। मैं कभी आपके रूबरू इस तरह आना नहीं चाहता था शहजादे, लेकिन मुझे मजबूर कर दिया आपने। आप मेरे सवाल का जवाब दें। हर चीज बता दूंगा आपको। अगर मेरा दिया गया जवाब काफी न हुआ तो आप बेशक मेरी गर्दन उड़ा दें। अक्सर दोस्तों की महफिल में एक शेर पढ़ा करते थे, कल की शब ये दिल मेरा दर्द व अलम से लबरेज था, हंगामाए महशर की तरह हर नाला शोरंगेज था। मेरे दिले रंजूर में सिर्फ तुम ही हो, मेरी निगाहों में तुम ही बसे हो। मैं जिस जाने भी देखती हूँ अपने, बस तुम ही हो। क्या खूब फरमाया शहजादी। उसके फौरन बाद मजलिस में शामिल एक दोस्त ने पूछा, अच्छा अगर एक गधा आता हुआ नजर आए तो क्या होगा? अब्दुल रहमान अल जामी ये सुनकर बोले, मेरा ख्याल है कि वो भी तुम ही हो। काफी देर हो चुकी है, हमें कुछ अहम मसाइल पर गुफ्तगू करनी है, अगर आपकी इजाजत हो शहजादी। हाँ जरूर। आओ। पाशा मोहतरम, जाल महमूद आगा आए हैं। मैं इजाजत चाहता हूँ, कुछ देर में आऊंगा शहजादी। आखिर इतना अहम मसला क्या है? आपको बेआराम करने के लिए माफी चाहता हूं पाशा मोहतरम। अब्दुल्ला को सवाना महल्ले के घर में रखा हुआ है। शहजादे मुस्तफा और तजी अली याह्या ने एक दो बार मुलाकात की। हमने शहजादे के मुहाफिज खास दाऊद का ताक़ुब किया, लेकिन वो हमारे आदमियों को धोखा देकर फरार हो गया। उस घर में आमदोरफ्त की निगरानी करो, यकीनन वहां कोई और भी आएगा। उस वक्त हम उन पर हमला करेंगे। आपका जो हुक्म पाशा। आपकी आमद का बहुत शुक्रिया, हमें बहुत खुशी हुई। चंबेली का फूल मेरा पसंदीदा फूल है। मैं जानता हूं शहजादी, इसी वजह से मैं आपको देना चाहता था। आप ये किस तरह जानते हैं? अदब, फातिमा सुल्तान तशरीफ ला रही हैं।
ख्याल है कि जिनका जिक्र हर जबान पर है, आप दियार अजम के वही खूबरू शहजादे हैं। जी मैं वही हूँ शहजादी। इस्तांबुल कैसा लगा आपको? क्या दियार अजम में भी है कोई ऐसा शहर? बहुत ज्यादा तो नहीं देख सका मैं, लेकिन आमद के दौरान जितना देखा काफी है। इस्तांबुल एक अजीम शहर है। अब आप यहीं पर हैं, घूमने फिरने का मौका मिलेगा। चाहे तो कुछ आगाह करूं मैं। आपकी नवाजिश होगी शहजादी। आज शाम आपको मेहरमा सुल्तान के महल में दावत दी गई है, सुना है मैंने। मुझे यकीन है कि आपने उनके लिए कोई तोहफा जरूर लिया होगा, क्योंकि तोहफे की अपनी ही अहमियत होती है। इस बागीचे में चमेली का कोई भी पौधा नहीं है। मेहरमा को बहुत पसंद है। एक खुशबख्त शहजादी के बारे में कुछ भी जानना हरगिज मुश्किल नहीं। आपकी खुशबख्ती का सबब मैं अजीम बादशाह को समझ रहा था, लेकिन आपको देखकर लगता है कि आपकी असल खुशबख्ती तो आपके बेपनाह हुस्न में है। आपको शब बखैर। आपको भी शहजादी। शहजादी, किस्सा मुख्तसर यह है शहजादे, आपके लायक एक जानिसार बनने के सिवा और कोई आरजू नहीं है। आपकी सलामती की खातिर हम मुत्तहिद हो गए हैं और कसम खाई है। पीरी रईस, मैं आपको जानता हूं। आप इल्म और इरफान के हवाले से काफी शोहरत रखते हैं। आप सल्तनत के लिए बहुत सी खिदमत दे चुके हैं। शायद हम सबको एक दिन फरामोश कर दिया जाए, लेकिन आपका नाम जिंदा रहेगा। सिर्फ आपके बनाए हुए नक्शों के सबब आज भी और रहती दुनिया तक आपका नाम हर जगह एहतराम से लिया जाएगा। ये तो आपकी नवाजिश है मुझ पर शहजादे। मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही, इतनी मेहनत से हासिल होने वाले इस मकाम पर और अपने शानदार माजी पर ये दाग कैसे लगा सकते हैं आप पीरी रईस? शहजादे, तुर्क सल्तनत हरगिज कोई मामूली सल्तनत नहीं पीरी रईस, वो इस जहां की सल्तनत है और कदीम कानून के तहत चलाई जा रही है। और सल्तनत का सिर्फ एक ही मालिक है और वो है सुल्तान सुलेमान खान मोहतरम। आपने जो कुछ किया आका के सामने एक संगीन जुर्म है। क्या इस बात का एहसास नहीं है आपको? आप किस तरह एक सल्तनत के अंदर एक और सल्तनत बनाने की हिम्मत कर सकते हैं? आखिर कैसे इतनी जुर्रत कर सकते हैं? ये सब आपकी खातिर है शहजादे। मैं कौन हूं पीरी रईस? मैं उस हुक्मरान का पिसर हूं, उनका शहजादा हूं। मैं आका के खिलाफ ऐसी बगावत कर सकता हूं, ये कैसे सोच भी लिया आप लोगों ने? हरगिज नहीं शहजादे, कतन हम आका के खिलाफ किसी भी किस्म की गद्दारी या बगावत नहीं कर रहे। हमारा सिर्फ एक ही मकसद है, आपको रुस्तम पाशा और हुरम सुल्तान की खतरनाक साजिशों से महफूज रखना और तख्त के रास्ते को साफ रखना है। कुछ भी हो जाए इसकी कोई वजाहत नहीं हो सकती और फौरन आप लोग ये सब खत्म करेंगे पीरी रईस। अपनी बनाई गई खुफिया तंजीम को खत्म कर देंगे आप। ये एक ऐसा खेल है शहजादे मोहतरम, साफ सुथरी सोच से इसे जीता नहीं जा सकता। अगर आपने हमारे राज को इफ्शा कर दिया तो आपके तमाम जानिसारों के सर कलम हो जाएंगे। कोई शक मत रखिएगा। अगर आपकी यही ख्वाहिश है तो बिल्कुल न रुके, क्योंकि हमने इसके लिए तैयारी कर रखी है। आप ठीक हैं शहजादे? काश कि आज मैं यहां बिल्कुल ना आया होता। मेरे सीने में दफन राजों में एक और राज का इजाफा हो गया। ऑस्ट्रिया का सफीर बेसब्री का इजहार कर रहा है आका। इसके अलावा शाकलेन भी इस समझौते में शामिल होना चाहता है। जब इतना इंतजार कर चुका है तो कुछ इंतजार और कर ले। जो हुक्म मेरे आका। आका, अलकास मिर्जा आपके हुजूर शरफ़े बारियाबी के मुंतजिर हैं। कोई बहुत अहम खबर है जिसे वो बनफ्से नफीस आपको बताना चाहते हैं। आने दो।
सुल्तान सुलेमान खान मोहतरम, रुस्तम पाशा के मुताबिक तुम कुछ बताना चाहते हो? दयार अजम के तुर्कमान सूबेदारों की जानिब से खबर आई है। अपनी आमद से कबल मैंने उनसे पूछा था कि वो मेरी जानिब है या फिर ब्रादर तहमासब की जानिब है। जवाब में उन्होंने मुझे मकतूबात अरसाल किए हैं। वो मेरी बैत और मेरी तरफदारी का दम भरते हैं। आप भी मुलाहिजा कर लीजिए, मेरी ख्वाहिश है। अगर आपकी इमदाद मिल जाए तो हम काज़बन पर हमला कर सकते हैं। उसके बाद मैं जिस तख्त का हकदार हूं उसे हासिल करना मुश्किल नहीं होगा और इस तरह अजम के तख्त पर तुर्कों का वफादार। शायद उन्हें खबर ही ना हो। खातून ने शहजादे से अपना शादीशुदा होना छुपा लिया होगा। लेकिन ये तो सरासर गलत है खातून, बहुत रुसवाई होगी। अगर ये बात आका की समात तक पहुंच गई तो शहजादे के लिए तख्त का रास्ता हमेशा के लिए बंद हो जाएगा। अल्लाह तू हमारी हिफाजत करना। परेशानी की बातें ना करो तुम, मुझे जरा सोचने दो इस बारे में। मेरे ख्याल में बेहतर होगा कि तुम शहजादे से खुद बात कर लो। खातून के शादीशुदा होने का बताऊंगी तो मुझसे सवाल करेंगे, आखिर क्या जवाब दूंगी उन्हें? रोम। रोम? रोम पारगली, इस दुनिया में सिकंदर आजम से अजीम और कोई शहंशाह नहीं गुजरा। मैं तुर्क सल्तनत 7 जहानों तक फैलाए बगैर नहीं मरूंगा। तुम देखोगे इब्राहिम, तुम देखोगे। अगर आपकी इमदाद मिल जाए तो हम काज़बन पर हमला कर सकते हैं। उसके बाद मैं जिस तख्त का हकदार हूं उसे हासिल करना मुश्किल नहीं होगा और इस तरह अजम के तख्त पर तुर्कों का वफादार और उनका हल्का बगोश बादशाह बनेगा। तुम्हारा मशवरा? वियना और उसके साथ रोम की जानिब पेशकदमी करना, कुफार के कद को उनके कब्जे से छीन लेना, हमेशा के लिए हासिल करना। उस्मान आगा, आका, फौरन दरबार हाजिर किया जाए और शहजादों से भी हाजिर होने का कहते हो। आपका जो हुक्म आका। मेरा दिल हरगिज़ मुतमईन नहीं है रियासत। काश कि हुरम सुल्तान इस तरह रुखसत ना होती। आखिर को तुम उनके जिगर के टुकड़े हो। वालिदा तुम्हें वक्त आने पर जरूर कबूल करेंगी हुरजहां, और अगर जिद में आकर मेरे फैसले को नजरअंदाज कर दिया तो मुझे खो देंगी वो हमेशा के लिए। इंशाअल्लाह सूरत हाल यहां तक नहीं पहुंचेगी। तुम ये बातें सोचकर खुद को रंजीदा मत करो। आओ। शहजादे मोहतरम, शिकार की तैयारी मुकम्मल है, आपकी तशरीफ आवरी का इंतजार। ठीक है, मैं आ रहा हूं। अगर रुक जाते तो अच्छा होता। ये शिकार अहम है, अतराफ की रियासतों के बहुत से सूबेदार भी शामिल होंगे, लेकिन तुम परेशान हरगिज मत हो, हफ्ते भर में वापस आ जाऊंगा।
हूर जहां की यहां मौजूदगी को मुझसे कैसे छुपा रखा तुमने? मेरी ऐसी कोई नियत नहीं थी मलिका, लेकिन मैं मजबूर हो गया था। एक तरफ शहजादे और दूसरी तरफ आप। मुझे सफाई का मौका दीजिए। बयाज़त और मैं दो अलग अलग लोग नहीं हैं। ये अच्छी तरह से ज़हनशीन कर लो। उसके मुतालिक मिलने वाली खैर की हर खबर से मुझे खुशी होगी। हूर जहां से मेरी औलाद को पहुंचने वाला नुकसान आश्कार है, वो यहां नहीं रह सकती। अगर तुम चाहते हो कि तुम्हें माफ कर दिया जाए तो मैं तुम्हें एक मौका और दे रही हूं। मेरे लिए क्या हुक्म है मलिका? हूर जहां को यहां से हर सूरत भेजना होगा। मेरे यहां से जाते ही उसे फौरन भेज दोगे। बेशक बेहान सुल्तान के पास भेज दो या फिर कहीं भी और चली जाए। क्या सूरत हाल है? शहजादे रवाना हो चुके? कुछ देर पहले महल से निकल गए हैं। तो फिर तुम तैयारी शुरू करो। एक मामूली सी भी गलती नहीं होनी चाहिए। मेरे शहजादों, मेरे वुज़रा, पादशाह हजरात, ऑस्ट्रिया के कुफ्फार हमारे कदमों पे सर रखकर हमसे सुलह करना चाहते हैं। अजम का शहजादा एलकास मिर्जा भी इस जहान की सबसे बड़ी शहंशाहियत का हिस्सा बनना चाहता है। इसके अलावा आज़रबाईजान और शेरवान के तुर्कमान सूबेदार भी हमारे हाथों पर बैत करना चाहते हैं। इस वक्त ऑस्ट्रिया से सुलह करके हमें अजम की जानिब बढ़ना चाहिए या दोबारा हंगरी का रुख करते हुए हमें ऑस्ट्रिया के जेरे कब्जा सरजमीन को दोबारा फतह करने की जरूरत है। मेरे आका, अजम का सफर आसान दिखाई देता है, इसलिए कि हमें वहां के मामलात का इदराक रखने वाले एलकास मिर्जा की हिमायत हासिल है। ये सफर हमारे लिए बहुत मुनासिब होगा। बरसों पहले अजम की जानिब सफर के दौरान हमारे लश्करों को पेश आने वाली मुश्किलात आप जानते हैं आका। हजारों सिपाहियों ने जंग से पहले ही पहाड़ों में फंसकर अपनी जान दे दी थी। शहजादे मुस्तफा बरहक हैं आका। सफर अजम से कोई मज़बूत नतीजा बरामद नहीं होगा। अगर एलकास के पास इतने ही तरफदार हैं तो वो हमसे क्यों मदद मांग रहे हैं? शहजादे मोहतरम, पहली मर्तबा दयार अजम के शहजादे ने हमारी पनाह में आकर हमारी गुलामी कबूल की है। हमें इस मौके से फायदा उठाना चाहिए। हमारे लिए तिलाई से वियाना और रूम है। आका, तबरेज को पहले हमारे बुजुर्ग मरहूम सुल्तान सलीम खान ने और उसके बाद आपने फतह किया था, लेकिन फिर भी हाथ से निकल गया। उस वक्त हमारे पास अजम का शहजादा नहीं था मेरे आका, और अब हमारे साथ शेरवान और आज़रबाईजान भी शामिल हैं। इसके अलावा भी दीगर बहुत लश्कर एलकास मिर्जा के सबब बिला ताखीर हमारी इताअत करेंगे। मेरी भी सफर अजम की नीयत है, क्योंकि पिछले सफर के दौरान तहमास्प हमारे हाथों से निकल गया और उसे हम सबक नहीं सिखा सके। ये बिल्कुल दुरुस्त वक्त है। लेकिन अगर पहले ऑस्ट्रिया का सफीर हमारी शराइत कबूल करेगा तो हम वहां के बादशाह को पनाह देकर फिर अपना सफर शुरू करेंगे। मेरे आका, फर्डिनेंट इश्तियाल फैलाने के खमियाजे के बदले सालाना 30,000 अशरफियां जुर्माना अदा करेगा। इसके अलावा उस सरजमीन पर हमारी हाकमियत को कबूल करेगा और शाकलेन किसी भी मुआहदे में खुद को शहंशाह नहीं कहलवाएगा। याद रखें, वो जल्द ही खिराज अदा करते हुए हमारी हुक्मरानी कबूल करेगा और हमेशा हमारा हुक्म तस्लीम करेगा। मलिका, सोकुल्लू, आपको दोबारा महल में देखकर बहुत खुशी हो रही है। अल्लाह आपको हमारे सरों पर सलामत रखे। आमीन। खैर की खबर लाए होगे इंशाअल्लाह। आका ने दयार अजम के लिए सफर हुमायूं का ऐलान कर दिया है। इसके अलावा ऑस्ट्रिया से सुलह करने के लिए मुआहदा हुमायूं करना कबूल फरमाया है। आला सुकुल्लू, इतने अरसे के बाद कितनी खुशी की खबर सुनी है। सारी परेशानियां दूर हो गई। शहजादे मुस्तफा को कोई अहम मनसब तो नहीं सौंपा गया? अभी नहीं,
लेकिन आका यकीनन कोई ना कोई मनसब उन्हें जरूर सौंपेंगे मलिका। इसे किसी भी तरह से रोकना होगा। इस सफर की नुमाइंदगी हमारे लोग करेंगे। रुस्तम सालार बनेगा, तुम बहरी सिपाह के सरबराह बनकर हमारे साहिलों की और हमारी हिफाजत करोगे। बयाज़त भी सफर में शरीक होगा। सलीम आका के नायब के तौर पे यहाँ पाया तख्त में रहेगा, और जैसा मैं सोच रही हूँ वैसा ही होना चाहिए। मैं समझा था कि आपके दिल में हमेशा शहजादे बयाज़त का ख्याल रहता है। कहीं कुथाया में कोई नाखुशगवार हादसा तो पेश नहीं आया? क्या बताऊं तुम्हें, हूर जहां सुल्तान मेरे पिसर पर मुसलत हो गई फिर से। लाला मुस्तफा को यह मसला हल करने का हुक्म दिया है मैंने। देखते हैं कि वो इसे हल कर सकेगा या नहीं। हमारी सब मेहनत रायगा चली गई। रुस्तम पाशा की बात तस्लीम कर ली गई। शहजादे अलकाज की सूरत हाल को बेहतर इस्तेमाल किया। आज का दिन तारीख में स्याह रूप में तहरीर किया जाएगा जहांगीर, क्योंकि आज का दिन इस खानदान की और इस अजीम सल्तनत की तकदीर बदलने का दिन है। आका ने एक जमाने में मरहूम इब्राहिम पाशा के साथ रोम फतह करने का जो ख्वाब देखा था उसे फरामोश कर दिया। आप जब तक जिंदा हैं ब्रादर, ये ख्वाब भी हमेशा जिंदा रहेगा। शायद ये वक्त हम जैसे लोगों के लिए मुनासिब नहीं जहांगीर मेरे ब्रादर। मुस्तफा ब्रादर, मेरा ख्याल है शहजादे कुछ वक्त तन्हाई में गुजारना चाहते हैं। बुरा हुआ। आका भी हमारी तरह सोच रहे हैं। इसका इतना यकीन हो गया था कि हमारी सारी मेहनत जाया गई। बिल्कुल जाया नहीं हुई शहजादे, इसकी अहमियत हमेशा रहेगी। क्या तुम्हारे ख्याल में ऐसा है? मुस्तफा, आका, जानता हूं तुम्हें जिस फैसले का इंतजार था वो ये नहीं, लेकिन मेरी हाकमियत कबूल करने वाले, मेरे सामने सर झुका देने वाले कुफ्फार पर हमला करने का आखिर क्या फायदा? और जब हमारे पास एलकास मिर्जा जैसा एक सुनहरी मौका है तो। आप सबसे बेहतर जानते हैं आका, बिल्कुल, लेकिन हमारे बुजुर्ग मरहूम सुल्तान महमद ने क्या इस मकसद के लिए अपनी जान कुर्बान नहीं की थी? उनकी सबसे अजीम ख्वाहिश कुफार के दिल रोम को हासिल करने और दियारे रोम का हाकिम बनने की नहीं थी क्या? बिल्कुल आपकी तरह। जब आप भी जवान शहजादे हुआ करते थे, इसी ख्वाब को हासिल जिंदगी नहीं समझते थे क्या? वो ख्वाब नहीं था मुस्तफा, बल्कि उस वक्त कदम कदम आगे बढ़ने वाला रास्ता था।
याद रखना, तलवारों के साए में जीती जाने वाली जंगें हमेशा सबसे अजीम जंगें होती हैं। आका, अगर उन्होंने हमारी शराइत कबूल नहीं की तो उस वक्त हम उन पर से अपना हाथ हटा देंगे और हमारी तलवार एक आसमानी बिजली बनकर उन पर गिरेगी और सब खत्म कर देगी। वो वक्त जब आएगा तो मैं आपके हमरा हूंगा, इसमें कोई शक मत रखिए आका। मुस्तफा, मेरी आंखों के नूर, मेरे दिलेर बिसर, रूनुमा होने वाले उस हादसे ने, पोशाक वाले मसले ने मुझे बहुत ज्यादा मुतासिर किया है। अच्छा हुआ वो किस्सा माजी बन गया। इंशाअल्लाह हमें जो एक दूसरे पर एतमाद है वो अब कभी कमजोर नहीं होगा। कभी कमजोर नहीं होगा आका। तैयारियां मुकम्मल होते ही हम सफर पे रवाना हो जाएंगे। मैं चाहता हूं कि तुम तैयारी में मेरा साथ दो, लेकिन तुम जानते हो कि ये सफर अजम काफी तवील, पुरमुशक्कत और थका देने वाला है। इस बिना पर तुम मेरे साथ नहीं जाओगे। इसके बरक्स तुम यहां मेरी अमानत के तौर पर इस तख्त की हिफाजत करोगे। आका, मैंने जो सुना है वो दुरुस्त है क्या? सल्तनत के नायब के तौर पर मुझे तैनात कर रहे हैं क्या? आका का मुस्तफा के साथ यूं टहलना कोई अच्छी अलामत नहीं है। मैं खुद को रोकने की कोशिश कर रही हूं, मगर ये नामुमकिन है। मुझे बहुत से वसवसे परेशान कर रहे हैं। छोटे शहजादे को कबूतर की मदद से महल का रास्ता मिल गया और आइंदा वो कभी तन्हा जंगल में नहीं जाएंगे और उनकी समझ में यह बात अच्छी तरह आ गई। पसंद आई क्या आपको? शहजादी, इजाजत दें, शहजादे को हमाम ले जाने का वक्त हो गया है। शहजादी। राना खातून, महल में मेरी मौजूदगी से तुम खुश नहीं हो, मैं जानती हूँ। और यही नहीं, हुरम सुल्तान को भी तुमने खबर की थी। हरगिज नहीं शहजादी, मेरी क्या मजाल। परेशान मत हो, तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगी। मैं तुम्हें सिर्फ एक बात समझाना चाहूंगी। मैं कोई कनीज नहीं, मुझे कतन अपना हरीफ मत समझना, वरना तुम्हारे लिए बुरा होगा। आओ। हूर जहां सुल्तान। कहो आगा। शहजादे मोहतरम ने खबर भेजी है, वो आपका डोमिनिक वाली हवेली में इंतजार करेंगे। बाअदब, हुरम सुल्तान तशरीफ ला रही हैं। खुश आमदीद वालिदा। मलिका, जिस चीज का अंदेशा था वही हो गया। आका ने सल्तनत के नायब के तौर पर शहजादे मुस्तफा को मुंतखब कर लिया। इस सफर के दौरान वो महल में कयाम करेंगे। ऐसा कैसे हो सकता है? उसको आका तक अमानत के तौर पर कैसे सौंप सकते हैं जिसने बगावत की? मुझे भी अब तक इस बात पर हैरत हो रही है मलिका। आका ऐसा फैसला करेंगे, मेरे तो वहम गुमान में भी नहीं थी ये बात। इसका क्या मतलब है तुम जानते हो? ये हमारी मौत का फरमान है। मुस्तफा अगर तख्त पर एक बार भी बैठ गया तो उसे वहां से हटाने की कोई भी हिम्मत नहीं कर सकेगा। बरसों बाद बिरादर मुस्तफा को ऐसा अहम ओहदा देना अहमियत रखता है। ये उनकी पता है, वो इससे मजीद मजबूत हो जाएंगे। लेकिन आपकी परेशानी बेवजह है, लश्कर आपके साथ जाएगा। हम एक जंग करने के लिए जा रहे हैं शहजादी। अगर हम लौटकर ना आ सके तो? अब समझी क्या तुम महरमा? और इसीलिए इस्तांबुल में तुम्हारे बरादरान में से किसी का होना नागुज़ीर है।
अभी और कितना रास्ता बाकी है? अभी काफी है शहजादी, काफी फासला है। रुक क्यों गए? क्या हो रहा है? लाला मुस्तफा, ये क्या हो रहा है? कुथाया की तमाम तर मेहमान नवाजी यहाँ आकर खत्म हो रही है शहजादी। बेहान सुल्तान के पास जाएंगी आप। आखिर आप कौन होते हैं और इस तरह मुझसे बात करने की हिम्मत कैसे कर सकते हैं आप? फौरन अपने मुहाफिज रास्ते से हटाइए। ऐसा फैसला मैंने अपनी जानिब से किया है, आप ये तो नहीं समझ रही शायद। हुरम सुल्तान आपको कतन यहाँ देखना नहीं चाहती। आपके पास जाने के सिवा कोई और रास्ता नहीं। मुझे जबरदस्ती करने पे मजबूर न करें। मगर शहजादे को इसका जवाब कैसे देंगे आप? शहजादे शिकार से 2 हफ्तों के बाद वापस आएंगे। मैं उनके वहाँ 1 माह कयाम के लिए पूरी कोशिश करूंगा। कितने दिन तक छुपा सकेंगे? वो यकीनन जरूर वापस आएंगे। इस सूरत हाल की खबर आका को भी की जाएगी शहजादी, और बजाते खुद उनके हुक्म से जाना होगा आपको। शहजादे अपनी गैर मौजूदगी में इस हुक्म की तामील करने की वजह से मुझ पर गुस्सा हो सकते हैं, लेकिन वो मेरी बेचारगी को समझ जाएंगे। लाला, बग्गी में तशरीफ ले जाएं शहजादी। मुहाफिज स्कूबे तक आपके साथ ही जाएंगे। ये हरगिज नहीं हो सकता। आप मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते। मैं आपसे से मिलना चाहती हूँ। ये मुमकिन नहीं है। उन्हें अब आप कभी नहीं देख सकेंगे। नहीं, मैं कहीं भी नहीं जाऊंगी। सुन लें, लाला, मेरी बात सुने। आपको एक अहम बात बतानी है मुझे। उसके बाद जो चाहे वो कर लीजिएगा, मैं राजी हूँ। आपको एक ऐसा राज बताऊंगी मैं कि हुरम सुल्तान को उसे जानकर बहुत ज्यादा खुशी होगी। तमाम पत्थर अपनी जगह से हिल जाएंगे। क्या है वो राज? वो एक अजीम राज है। उसके बदले सिर्फ एक चीज चाहूंगी मैं आपसे। मुझे यहाँ रहने की इजाजत देंगे आप? सरूहान रियासत में सलीम को भेज दिया, लेकिन सल्तनत के नायब के तौर पर मुस्तफा को मुनासिब समझा। मैंने बहुत सोचा, लेकिन इस फैसले का मतलब नहीं समझ पाई। मैंने ऐसा ही मुनासिब समझा हुरम। इसके अलावा मैं कुछ नाखुशगवार हादसात का गवाह रह चुका हूं। मनीषा जाने के बाद शहजादे सलीम को नाजेबा हालत में देखा था। उसे देखकर मुझे बहुत शर्मिंदगी हुई थी। उसके बाद वो अपनी गलती समझ गया। उसने माफी मांगी, तौबा कर ली, लेकिन उसकी ये हालत मेरी नजरों से ओझल नहीं हुई। सलीम खुद अपनी इस्लाह कर लेगा। उसे कुछ वक्त चाहिए। अगर आपने उसका ख्याल ना रखा तो अंदेशा है कि हमारी औलाद गुमराहकुन रास्तों पर चल पड़ेगी। मैं अपनी औलाद को ऐसे रास्ते पर नहीं चलाना चाहता, लेकिन मैं अपने इस फैसले पर बहुत मुतमईन हूं। मुस्तफा मेरी गैर मौजूदगी में पाए तख्त को कामयाबी से संभाल लेगा। खुदा सब खैरियत रखे। आओ। नूर बानो, तुम्हें इस बात का कैसे पता चला? आप कोई बात नहीं छुपा सकते मुझसे। मैं सब कुछ जानती हूँ और देख भी रही हूँ। पाए तक से आने वाली खबर मैंने सुन ली है। शहजादे मुस्तफा को सल्तनत का नायब तैनात कर दिया गया है। आका अगर मुलाकात के लिए ना आए होते और आपको उस हालत में ना देखते, आज यकीनन इस जगह पर आप होते।
लेकिन जो कुछ भी किया जाए फिजूल है। शायद हम अपनी आंखें बंद किए हुए कयामत की जानिब बढ़ रहे हैं। मैं तो समझ रहा था बाबा ने मुझे माफ कर दिया नूरबानो। गजन फरागा, शहजादे से मिलने के लिए कुछ शख्स आया है। वो कुर्ब जवार का नहीं लग रहा है। कौन हो तुम साहब? क्या चाहते हो? आगा को बताया था मैंने, शहजादा सलीम से कुछ बात करना चाहता हूँ। क्या यूं ही बिला सबब तुम शहजादे सलीम से मुलाकात करने के लिए आ गए? मेरा नाम दिमित्री है। अलाशेर का एक जमींदार हूँ मैं। मेरी जमीन पर आप आ चुके हैं, क्योंकि आपको वहां देखा था मैंने। एक खातून भी थी आपके साथ। इससे क्या फर्क पड़ता है दिमित्री साहब? शहजादे शिकार के लिए गए हुए थे और हम भी उनके हमरा थे। आराम करने के लिए वहां जरा सा ठहर गए तो शुक्रिया उसके लिए। उस जमीन की मालकिन का उन्होंने हमारी तवाज़ा की थी। वो खातून मेरी ज़ौजियत में है। शायद मुझे सफर में भी शामिल नहीं करना चाहते। हुर्रम सुल्तान महल वापस आ चुकी हैं। वो जरूर कोई रास्ता निकाल लेंगी। आओ। शहजादे, आपको बेआराम करने के लिए माजरत। कहो। दिमित्री नामी एक शख्स आया है, आपसे मिलने की जिद कर रहा है। उसके कहने के मुताबिक आप उसकी ज़ौजा को जानते हैं। कौन है वो? क्या कह रहे हो तुम? इस्तालिया नाम की एक खातून है। अल्लाह शेर का जमींदार है वो। मतलब वो शादीशुदा है? शहजादे, कौन है इस्तालिया? तुम अपने कमरे में जाओ नूरबानो। तुम उसे कहो कि वो यहां से वापस जाए। गजन पर किस जुर्रत से आया वो यहां? आपका जो हुक्म शहजादे। क्या चाहता है वो आदमी? क्यों आया है? सूरत हाल जान चुका है वो। अगर उसने काजी से शिकायत कर दी तो आका को फौरन मालूम हो जाएगा। बदतमीजी से पेश ना आना। शहजादे उससे बाद में खुद मुलाकात करेंगे। उस वक्त तक कोई रास्ता तलाश करना होगा हमें। अगर शिकायत कर दी तो? शिकायत करनी होती तो यहां ना आता। लेकिन तुम फिर भी उसके पीछे किसी को लगा दो, ताकुब के लिए। शहजादी, वालिदा कमरे में हैं? वो ख्वाबगाह की तरफ गई हैं। कुछ देर में आ जाएंगी। अच्छा, मैं कमरे में इंतजार कर रही हूँ। शहजादी, ये आपको देने के लिए कहा गया है। खातून रुको जरा। किसने भेजा है तुम्हें? आज उस राह से गुजरा जहां से आप गुजरती हैं। मैंने गुलों की खुशबू और उनके मुस्कुराते चेहरे देखे। वो तमाम फूल आपके हुस्न के सामने मान पड़ गए। क्या महताब आपको देखकर कभी शर्माता नहीं है? सूरज बादलों की ओट में क्यों चला जाता है? आपको देखकर मैं बेबस और लाचार हो चुका हूँ। आपके सुर्ख लब देखने की ताब मुझ में न थी। मैंने धड़कते हुए दिल के साथ आपकी जानिब देखा। मेरी किस्मत में जलना और जल के राख होना है, बिल्कुल एक परवाने की तरह। मेहरमा, क्या कर रही हो तुम यहाँ? आग बुझ रही थी तो
یہ تمہارا کام تو نہیں ہے. کسی کنیز کو کیوں نہیں بلوایا تم نے؟ کوئی بات نہیں، آپ کا انتظار کرتے ہوئے میں خود کرنے لگی. کیوں انتظار کر رہی تھی میرا؟ رستم نے مجھے حور جہاں کے مسئلے کا بتایا، لیکن والدہ آپ نے مجھے کیوں نہیں بتایا؟ جتنے کم لوگوں کو معلوم ہو اچھا ہے. میں اس کو جلد حل کر لوں گی، اس لیے نہیں بتایا تمہیں. انہیں آگ نے بہت پہلے ہی اپنی لپیٹ میں لے لیا ہے والدہ. آپ جتنا دخل دیں گی وہ اتنا ہی قریب ہوں گے. چھوڑیں، مجھے حل کرنے دیں. اگر اس کی ضرورت پڑی تو میں اپنی لازوال محبت کے تجربے سے فائدہ اٹھاؤں گی. آؤ. شہزادے، پایہ تخت سے ایک اہم خبر آئی ہے. خیر ہوگی انشاءاللہ. آقا نے سفر ہمایوں کا فیصلہ سنا دیا ہے. ترک سرزمین پر پناہ لینے والے القاس مرزا اور ان کے سالاروں کے ہمراہ تہماسہ پر حملہ کیا جائے گا. اعلیٰ، کافی عرصے سے سفر پر نہیں نکلے ہمارے لشکر. آقا نے سفر کے دوران سلطنت کے نائب کے طور پر شہزادے مصطفیٰ محترم کو تعینات کر دیا ہے. اچھی خبر ہے. سلیم کے بجائے برادر مصطفیٰ کے پایا تخت میں رہنے کا فیصلہ زیادہ بہتر ہے. ہم بھی سلیم کے ہمراہ سفر میں شریک ہوں گے. برا مت مانیے گا شہزادے، لیکن میں آپ کی طرح اتنا مطمئن نہیں ہوں. شہزادے مصطفیٰ سے آپ کے تعلقات اچھے ہیں، مجھے احساس ہے، لیکن اگر ایک دن آپ تخت پر بیٹھنا چاہتے ہیں تو آپ کو ان سے فاصلہ رکھنا ہوگا. آؤ. شہزادے، آپ کو بے آرام تو نہیں کیا؟ کیسی بے آرامی حور جہاں؟ شکار سے جب سے واپس آیا ہوں ہم ٹھیک طرح بات بھی نہ کر سکے. لالا آپ جا سکتے ہیں. آپ شہزادے، شہزادی، مصطفیٰ میرے بیٹے، اللہ نے مجھے پھر یہ دن دیکھنا نصیب کیا. جب تم جا رہے تھے میں بہت رنجیدہ تھی. تمہاری واپسی سے بے حد مسرور ہو گئی. بہت شکر ہے کہ آقا اور میرے درمیان جو ناراضگی اور غلط فہمی تھی وہ دور ہو گئی. والدہ، لگ رہا ہے اگر ناراض ہوتے تو تخت کو تمہاری امانت میں نہیں سونپتے. خبر ملتے ہی مجھے بہت خوشی ہوئی. محرم نساء کہاں ہے؟ کہیں پریشان مت ہو، وہ ٹھیک ہے، اپنے کمرے میں تمہاری منتظر ہے، کیونکہ اب اس کی صحت پہلے سے بہت بہتر ہو گئی ہے. شہزادے، آخرکار آپ واپس آ گئے. خدا نے بیٹے سے نوازا ہے. ایک ہفتے سے میں اس کے ساتھ آپ کا راستہ دیکھ رہی ہوں. اللہ حفاظت کرے اس کی. شہزادہ خوشی کی خبر لایا ہے. بخت بھی ایسا ہی خوبصورت ہوگا انشاءاللہ. آمین. آمین. نساء، تم ٹھیک ہو نا؟ ٹھیک ہوں بالکل. ہمارا بیٹا صحت مند ہوا ہے اور آپ بھی یہاں ہیں. والدہ، آپ نے کیوں مجھے خبر نہ دی؟ تمہارے وہاں سے روانہ ہونے کی خبر ملی تو اس کی ضرورت نہیں سمجھی، لیکن اب تم واپس آ گئے ہو تو چاروں جانب خبر کروا دیں گے. فدان، آپ کا جو حکم ملکہ. کنیزوں میں سے ایک کلثوم خاتون ہے شہزادے. ہر ایک سمجھے گا کہ وہی اس کی ماں ہے. میرے بیٹے. ملکہ، نساء، یہ سب چھپانا بہت ضروری ہے. یعنی یہ راز. ہم پہلے بھی بات کر چکے ہیں مصطفیٰ. یہ راز کسی کو معلوم نہیں ہوگا، خاص طور پر نائب کا اعلان ہونے کے بعد.
जानती हूँ मैं। आका से ताल्लुकात बेहतर हो गए, लेकिन अभी तुम्हारे बारे में उन्हें मालूम नहीं। हमें तख्तनशीनी वाले दिन का इंतजार करना होगा, और मुझे इन हालात से कोई शिकायत नहीं। आपका साथ होना ही काफी है। मुझे लिखने की जरूरत करने का सबब आखिर क्या है? यकीन कीजिए मैं नहीं जानती। मैं इस मामले में बुरा महसूस कर रही हूँ। ये सब अगर लोगों ने सुन लिया तो सब यही समझेंगे कि मैंने आपकी हौसला अफजाई की थी। कयामत आ जाएगी, हम दोनों पर ही मुसीबत नाज़िल हो जाएगी। पाशा मोहतरम, खुश आमदीद। हुमाशा, मेरी जाने अजीज दुख्तर। महरमा कहाँ है? वो अपने कमरे में है पाशा, आराम फरमा रही हैं। इस पहर आराम? क्या तबीयत नासाज है? जरा तबीयत बोझल है, कह रही थी। तुम्हें वो सब कैसे मालूम हुआ? इसकी कोई अहमियत नहीं। ये मसला कैसे हल होगा हमें ये सोचना चाहिए। तुम मेरे सवाल का जवाब दो नूरबानो। मेरे ताकुब में लोग लगाए थे क्या तुमने? ताकुब करवाया तुमने मेरा? आका से आपने वादा किया था, तौबा की थी आपने, लेकिन उस पे कायम ना रह सके। मुझसे भी आपने वादा किया था किसी दूसरी खातून से नहीं मिलेंगे, लेकिन आप मिले और आपने मेरे एतमाद को ठेस पहुंचाई। उसके बावजूद मुझे इन सब बातों की कोई परवाह नहीं, क्योंकि हमने तय किया था एक दूसरे का साथ देंगे, ये वादा किया था। आप मुझ पर भरोसा करेंगे और मैं आप पर। अस्तालिया नामी खातून के शौहर से मिलिए, वो जो चाहता है मान लीजिए। ये मसला खत्म होना चाहिए। शहजादी की इजाजत नहीं है पाशा। मैं मसरूफ हूँ, कैसे इस तरह इजाजत के बगैर मेरे कमरे में आ सकते हैं आप? आपकी नासाज तबीयत का सुना तो फिक्रमंद हो गया, आपको देखना चाहता था। ठीक हूँ मैं अब सोना चाहती हूँ। खैरियत, रात के इस वक्त किसे मकतूब लिखा जा रहा है? बेआज़त को। काफी अरसे से उसकी खबर नहीं मिली, इसलिए मैं फिक्रमंद हो गई थी, क्योंकि हुर जहां वाला मसला हल करना नागुज़ीर है। उससे कई बार नसीहत कर चुकी हूँ, लेकिन ये बेआज़त है ना, बिल्कुल पागल है। वो कैसे ही हरकत कर सकता है, मुझे समझ नहीं आ रहा बिल्कुल। मुझे मकतूब लिखने की जुर्रत करने का सबब क्या है मैं नहीं जानती, यकीन कीजिए। ये बेआज़त को लिखा है। आप किस हक से मेरी चीजों में दखल दे रहे हैं? आप मुझसे जवाब तलब नहीं कर सकती। कौन है ये महरमा? कहां भेजा जाएगा ये मकतूब? बताइए। आप जो समझ रहे हैं वैसा कुछ भी नहीं है रुस्तम, और वैसे कुछ होना मुमकिन भी नहीं। मुझे कुछ तहरीर किया था तो मैंने भी सोचा कुछ नसीहत करनी चाहिए, और कुछ भी नहीं है। दुनिया में कोई भी शख्स किसी सूरत में इसकी हिम्मत नहीं कर सकता जब तक कि आप उसकी हौसला अफजाई न करें। रुस्तम, अपने हद आशना रहे। मुझ पर ऐसे कैसे इल्जाम लगा सकते हैं? फौरन जाए मेरे कमरे से। जब तक आप मुझे ये बताएंगे नहीं कि वो शख्स कौन है, कहीं भी नहीं जाऊंगा मैं। कहां है वो मकतूब? जरा मैं भी तो देखूं। रुस्तम, रुस्तम छोड़ दीजिए।
اسے پہلے ہی جلا دیا نا؟ کون ہے وہ شخص مہرما؟ الکاس ہے کیا؟ سوکلو ہے؟ بتائیے مجھے. وہ جو بھی ہے، کیا جواب لکھا ہے آپ نے دیکھ لیا، اور اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے. وہ کون ہے آپ مجھ سے چھپا رہی ہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ آپ دونوں کے درمیان ضرور کچھ ہے. آپ جو کچھ سمجھنا چاہتے ہیں سمجھ لیں، مجھے ذرا سی بھی پرواہ نہیں. اب میرے کمرے سے چلے جائیں اور آئندہ نہ آئیے گا. وستالیہ شادی شدہ ہے، مجھے معلوم نہیں تھا. اگر مجھے معلوم ہوتا تو میں ہرگز بھی اس سے ملاقات نہ کرتا. تم جو چاہتے ہو مجھے بتاؤ. یہ مسئلہ ہم آپس میں طے کر لیتے ہیں، اس لیے کہ اس معاملے کو طول دینے سے کسی کا فائدہ نہیں ہوگا. تو کیا میں یہ سمجھوں کہ آپ میری عزت اور ناموس کو خریدنا چاہتے ہیں شہزادے؟ ادب سے بات کرو شہزادے سے. غضنفر، تمہیں ایسی بات کرنے کا حق حاصل نہیں ہے. تم جو بھی چاہو گے میں ادا کر دوں گا. ضد نہ کرو، ورنہ ہمارے پاس ایک ہی راستہ رہ جائے گا. بعض اوقات یہاں آتے ہوئے مجھے دوسرے گھر دکھائی دیتے ہیں. کھڑکیوں سے روشنی جلملاتی نظر آتی ہے. بچوں کی، عورتوں کی، مردوں کی آوازیں سنائی دیتی ہیں. بعد میں اپنی آنکھیں بند کر کے سوچتا ہوں کہ میں بھی ان جیسی زندگی گزارتا ہوں. ایک معمولی گھر میں رہتے ہم. کاش تم میرے لیے کھانا بناتی، اپنی اولاد کے ساتھ ہم دسترخوان پر بیٹھتے، اس کے بعد ہم خوش و خرم رہتے. لیکن کسی اور انداز سے، کسی اور ہی زندگی میں. جس میں آپ مجھ سے محبت کرتی. کاش ایسی زندگی ہوتی ہماری. پاپا محترم، لوتھر کے سفیر آپ سے شرف ملاقات چاہتے ہیں.
पापाए मोहतरम। मुझे बताओ, तुम्हारे पास हमारे लिए कौन सी खबर है आखिर? मैंने सुना है कि फर्डिनेंड और शार्कलीन तुर्कों के साथ एक मुआहदे के लिए अपनी अपनी कोशिशें तेज कर रहे हैं पापाए मोहतरम। हो सकता है इस मुआहदे पर बहुत पहले से ही समझौता भी हो चुका हो। इसके अलावा कहा जा रहा है कि आप भी इस ज़िम्म में रजामंद हैं। उन बेदीन लोगों से हम कैसा मुआहदा करेंगे पापाए मोहतरम? आप इस बारे में क्या कहेंगे? लूथर नामी बेदीन से कहो कि उसने जो कुछ सुना है वो दुरुस्त है। हम अमन कायम करना चाहते हैं क्योंकि ईसाई दुनिया आपस में मुत्तहिद नहीं और तुर्कों को जेर करना नामुमकिन है, ये आश्कार है। और इस मुआहदे में सबसे अजीम किरदार हमारा होगा। ये बात तुम अपने जहन से हरगिज न निकालना और ये बात अपने बादशाह लूथर को अच्छी तरह समझा देना कि ये इत्तेहाद पूरी ईसाई दुनिया के लिए निहायत सूदमंद होगा। ऑस्ट्रिया का शाह आज के बाद हमारे अजीम बादशाह को हंगरी की रियासतों का शहंशाह कबूल करेगा। अपने तमाम इत्तेहादियों पर बर्री और बहरी तरफ से कोई भी तुर्क कभी हमला नहीं करेगा। ऑस्ट्रिया ने जिन इलाकों पर हमला किया था उसके लिए वो हर साल 30,000 अचरफियां बतौर खिराज अदा करेगा। दोनों जानिब से ताजरों के दरमियान तिजारत करने पर कोई पाबंदी नहीं होगी। मुमलिकत हंगरी और बोस्निया की सरहदों के राहजन ऑस्ट्रिया के लश्करों की मदद से खत्म किए जाएंगे। इसके अलावा शाह फर्डिनेंड सातों जहां के बादशाह सुल्तान सुलेमान खान मोहतरम की इनायत और करम से रोम और उसके ताबे तमाम रियासतों के बादशाह के तौर पर और उसका बिरादर शार्कलेन हस्पानवी रियासतों के शाह के तौर पर कबूल किया जाता है। ये तारीखी मुआहदा हमारे बादशाह की तरफ से ये तमाम शराइत 5 बरस के लिए बतौर एहसान आयद की जा रही हैं। ये खैरियत का वसीला होगा इंशाअल्लाह। मैं हूँ महरमा, महताब व आफताब की शहजादी महरमा, सुल्तान सुलेमान की आंखों का नूर, हुरम सुल्तान के दिल का टुकड़ा। महल में, इस्तांबुल में और इस जहां की तमाम शहजादियों में सबसे खूबसूरत शहजादी। दुनिया के सबसे बेशकीमत जवाहिरात, सबसे नादिर मलबूसात और तमाम नफीस अशिया मेरे कदमों तले हैं। खाना तनावल करने के लिए सोने की रकाबी, पीने के लिए हीरे जड़े हुए कटोरे। तमाम औरतें मेरी जिंदगी और मेरी हैसियत से हसद करती हैं और मर्द मेरी झलक देखने के लिए अपनी जान भी कुर्बान करने को तैयार हैं। मैं हूँ महरमा, जबकि कोई नहीं जानता मेरी हकीकत। मैं जैसी नजर आती हूँ वैसी नहीं हूँ, हर गुजरते दिन के साथ मुरझा रही हूँ। मेरा दिल सिसक कर दम तोड़ रहा है। मैं सुन रही हूँ, मेरे अतराफ कयामत का शोर बरपा है।
एक अजीम जंग के दरमियान मैं तन तन्हा हूँ। मेरे सामने सर कलम किए जा रहे हैं, जिंदगियां खत्म हो रही हैं, कस्में खाई जा रही हैं और तोड़ी जा रही हैं। जिंदगी इन तमाम तकलीफ और नफरतों के दरमियान गुजर रही है और मेरे अतराफ हौलनाक तूफान उठ रहे हैं, लेकिन मेरे होठों से कभी एक लफ्ज बाहर नहीं आता। कोई भी मेरे दिल का हाल मुझसे नहीं पूछता। दीगर तमाम औरतों की तरह मेरा दिल भी कई राजों का मस्कन है और हर राज की किस्मत में होता है एक दिन अफशा होना। हर राज जब अफशा होता है तो हमारे कई प्यारों को हमारे लिए मशकूक बना देता है और बिलाखिर एक दिन हकीकत सामने आ जाती है। बाज़ औक़ात एक मामूली सा राज इंसानों की जिंदगी बदल देता है। काश इंसान ये राज इजाद ना करता, कभी कोई बात पोशीदा रखने की कोशिश ना करता। लुक़मान आका, आका के लिए शहजादा बेअज़त के लाला मुस्तफ़ा की जानिब से मकतूब आया है। आका शाही बागीचे में है इस वक्त। तुम मुझे दो, ये मकतूब मैं पहुंचा दूंगा उन तक। ऐसा मुमकिन नहीं है आका, मैंने जान की कसम खाई है, आका के हवाले मैं खुद ही करूंगा। आओ। मलिका, महरमा सुल्तान तशरीफ लाई हैं कुछ देर पहले। रुस्तम पाशा के कमरे में गई हैं। तो क्या हर्ज है इसमें? वो कुछ बेहाल सी लग रही थी। महरमा, बहुत गौर किया रुस्तम। अब मैं इस तलखी को अपने अंदर मजीद नहीं रख सकती। ये बहुत अजियतनाक है। इंसान दुनिया में एक बार आता है, उसका मकसद खुश रहना है। इस तरह जैसे कुछ नहीं हुआ, सब कुछ अच्छा है, मैं ऐसा बर्ताव करके आपके साथ हक तलखी कर रही हूँ। इसका क्या मतलब? क्या कहना चाहती हैं? मैंने एक फैसला किया है। क्या हो रहा है यहाँ? तुम दोनों खामोश क्यों हो? वालिदा, मैंने एक फैसला किया है और इस फैसले में जितना हमारा ताल्लुक है उतना ही आपका है, क्योंकि हमारा रिश्ता आपने तय किया था। आखिर कहना क्या चाहती हूँ मुझसे? मैंने रुस्तम से अलग का फैसला कर लिया है। क्या कहा? आप सुन चुकी हैं वालिदा। मैं रुस्तम से अलग का फैसला कर चुकी हूँ। और मैं अपना फैसला हरगिज़ तब्दील नहीं करूंगी।
میرے آقا. کہو لقمان آقا. شہزادہ بیازت کے لالا نے آپ کے لیے ایک مکتوب بھیجا ہے. میرے عظیم آقا، آپ کو یہ مکتوب نہایت مجبوری میں ارسال کر رہا ہوں، کیونکہ آپ کے علم میں لانے کے لیے زندگی سے بھی زیادہ اہم مسئلہ ہے. لیکن یہ مسئلہ جیسا کہ آپ سوچ رہے ہوں گے شہزادے بیازت کے متعلق نہیں، بلکہ شہزادے مصطفیٰ محترم کے متعلق ہے. مجھے افسوس ہے، شہزادے مصطفیٰ محترم نے مرحوم خضر خیر الدین پاشا کی دختر مہر النساء خاتون سے خفیہ نکاح کیا ہوا ہے. میری معلومات کے مطابق ان کا یہ رشتہ عرصہ دراز سے قائم ہے اور اب تو خاتون شہزادے کے بچے کی ماں بننے والی ہے. آخر اس طرح اچانک علیحدگی کی بات کہاں سے نکل آئی؟ آپ کس بات پہ اتنی ششدر ہو رہی ہیں والدہ؟ رستم سے علیحدہ ہو رہی ہوں اس لیے؟ یا آپ کے بالکل سامنے میں نے اپنا فیصلہ سنا دیا اس وجہ سے؟ رستم پاشا، مجھے دختر کے ساتھ اکیلا چھوڑ دو. آپ کو جو کہنا ہے اسی وقت رستم کے سامنے کہیے. یہ آپ کا سب سے بااعتماد پاشا ہے، داماد ہے. اس سے تو آپ کبھی کچھ نہیں چھپاتی کیوں ہے نا؟ دربار کی خفیہ طور پر سننے والی باتوں کے علاوہ. خاموش ہو جا، فوراً میرے کمرے میں جاؤ اور وہاں انتظار کرو میرا. اب میں آپ کی روبرو خاموش رہنے والی آپ کی فرما بردار دختر نہیں ہوں، اس لیے اس بات کا آپ جتنی جلد ادراک کر لیں اتنا ہی بہتر ہوگا. اپنے حواس قابو میں رکھو. یہ صرف تمہارے کرنے کا فیصلہ نہیں ہے مہرما. میں اس کا حق رکھتی ہوں والدہ. اس خاندان کا خون میری رگوں میں ہے، اس لیے ہر شہزادی کی طرح میں اپنے شوہر سے علیحدگی کا حق رکھتی ہوں. سب کچھ ختم کرنے کے لیے صرف 3 لفظ کافی ہیں. چلے جاؤ. مہرما، چلے جاؤ تم. اگر تم قواعد و ضوابط کی بات کر رہی ہو تو سن لو اچھی طرح سے. 1000 بار بھی کہہ دو گی کہ چلے جاؤ تو کافی نہیں ہوگا. آقا کی تصدیق کیے بغیر علیحدہ ہونا ممکن نہیں ہے. میں ویسے بھی اس پتن کے پاس جا رہی ہوں. مہرما، تم دونوں کے درمیان کیا ہوا نہیں معلوم، لیکن رستم سے پوچھ لیں، وہ بتا دے گا آپ کو. اگر اپنے بابا سے بات کرنا چاہتی ہو تو کر سکتی ہو، میں تمہیں نہیں روکوں گی کبھی. لیکن اگر کوئی ایسی بات ہے جس سے تمہیں دکھ پہنچا ہے تو پہلے مجھے بتانی ہوگی. اس کے بعد جو بھی کرنا چاہتی ہو کر لینا. امیر البحر پاشا کی بیٹی مہر النساء خاتون مصطفیٰ کی نائب ہے. کیا اب تک وہ اپنے منصب پر ہے؟ نہیں میرے آقا، وہ آمسیہ میں نہیں ہے. شہزادے نے آپ کی خواہش کے مطابق خاتون کو عہدے سے برطرف کر دیا ہے. مجھے افسوس ہے، شہزادے مصطفیٰ محترم نے
मरहूम खिजर खैरुद्दीन पाशा की दुख्तर मेहरुन्निसा खातून से खुफिया निकाह किया हुआ है। आका, अमीरुल बहर महमद पाशा तशरीफ लाए हैं, आपसे मुलाकात की मुंतजर हैं। आने दो। मेरे आका, मुझे याद फरमाया आपने। किसने भेजा था वो मकतूब? जब तक मुझे मालूम नहीं होता मैं किसी पर इल्जाम नहीं लगा सकती। वैसे भी मेरे इस फैसले का मकतूब से कोई ताल्लुक नहीं। अलैदगी के बारे में बहुत अरसे से सोच रही थी मैं। ये हादसा तो सिर्फ एक बहाना है वालिदा। वो सब तो माजी की बातें हैं। मैं तो समझ रही थी कि तुम खुश हो उसके साथ। आप जो कह रही हैं कि आप खुद यकीन रखती हैं उस पर। रुस्तम तुमसे मोहब्बत करता है। क्या कभी भी उसने किसी भी किस्म का बुरा रवैया रखा? कोई एक बात भी कही? तुम्हें अपनी जात से कभी भी उसने कोई तकलीफ पहुंचाई? उसका एक ही कसूर है, अमूर सल्तनत में मसरूफ रहता है, लेकिन यह सब बेहतर हो सकता है। बताओ, क्या इसके सिवा कोई और कसूर भी है उसका? क्या तुम्हारे शौहर की हैसियत से अपनी जिम्मेदारी नहीं निभा रहा वो? अब भी आप मेरा मसला समझना नहीं चाहती वालिदा। इस रिश्ते को बलाए ताक रखने वाली मैं हूं, क्योंकि मैंने कभी नहीं चाहा उसे और ना ही कभी चाहूंगी।